Namaste everyone, hope all of you are well. Today we are going to discuss P block elements, 5th lecture. Till the 4th lecture, we have discussed about physical and chemical properties of group number 40. In this video, we will start from the anomalous behavior of carbon in group number 40. So this is P block elements, lecture number 5. Just now in your mind there may be a question, sir, we have studied already the reactions of P block elements, right? Means all the chemical reaction we have studied. Now important trends, or you can say it is a anomalous behavior of carbon. First of all, anomalous behavior of carbon. Now you may have questions, sir, what is this anomalous behavior of carbon? You know group number 40, carbon, silicon, germanium, tin, lead, right? In this, except carbon, all are having d orbitals. Carbon is the second group element, carbon atomic number 6, 1s2, 2s2 and 2p2 electronic configuration. Maximum it can have how many number of ligands? Maximum, if this s electron excite and go into the p orientation, so maximum number of ligands will be 4, right? But if we talk about the silicon, germanium, tin and lead, they can have more than 4. So if I talk about the silicon electronic configuration will be near 3s2 and 3p2, right? But here there is 3d0 also in the vacuum formation. So 3s2 means if they are in the ground state, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so here 3s2, 3p2 and 3d0. But if we talk about excited state, so in the excited state what will happen? 3s1, 3p3 and there is still vacant 5d orientations. Means silicon can form hexagonal compounds also, it can have more than 6 ligands also. But if I talk about carbon is having small atomic size. And one more property, if I talk about p-pi bonding, only carbon can form. Rest, all the elements will form hexagonal, so there will be a d-pi or d-pi-p-pi bondings. But if I talk about the carbon, then carbon can form p-pi bonding. Here you may have one more question about the carbon. That sir, in this whole group number 14, that only carbon is not having, then also carbon is forming maximum compounds. Yeah, you can have a doubt. Sir, except carbon, all are having d orbitals, they can form hexagonal compounds. But if I talk about the carbon, because there is a property called catenation property. Catenation property means carbon can exist in C4 plus also and C4 minus also. This is the catenation property of carbon. The tendency to link with one another through the covalent bonds which form chains and rings, this property is called catenation property. This is because carbon-carbon single bonds are very strong. As down towards the group, the size increases, the electronegativity decreases. Thereby the tendency to show the catenation property decreases. This can be clearly seen in the bond enthalpies value. The order of catenation, carbon is much more greater than silicon, silicon is greater than germanium and germanium is equal to tin. Lead does not show catenation property. तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कार्बन का एक सबसे बड़ा ये जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है कि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। कार्बन डबल बॉन्ड में भी बना सकता है कार्बन के साथ, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है कार्बन के साथ, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर के साथ बना सकता है। So this is only and only because of the catenation property. As we move down towards the group, carbon, silicon, germanium, tin, lead. So silicon से बहुत ज़्यादा
कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन का है। ये सब बॉन्ड इंथैल्पीज के कारण होता है, और बॉन्ड इंथैल्पी आप जानते हो। तो यहाँ पर जर्मेनियम और टिन का लगभग बराबर ही होता है। लेड जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो कार्बन, यही रीजन है कि कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, ये पूरा बिकॉज ऑफ द कैटिनेशन प्रॉपर्टी इट कैन donate 4 carbon, it can attach 4 carbon, it can form single bond, it can form double bond, it can form triple bonds, right? So this is the unique ability of p-pi, multiple bonds with itself and other atoms also because of the high electronegativity. एक और चीज, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पूरे ग्रुप में कार्बन का होगा। बाकी जैसे ही हम ग्रुप से नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। तो ये था हमारा एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। Due to the property of catenation and p-pi bond formation, carbon is having a property to show allotropic forms. अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन तो हम लोग समझ गए, लेकिन यहाँ पर जितने भी एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, क्या क्या एलोट्रॉप्स है आप लोगों को पता होगा। डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरेंसिस है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में जब आती है तो जो जो टॉपिक आप पढ़ते जाते हो उसको लिख लो सबसे पहले, और जो जो बिहेवियर मैंने आपको बताया उसको नोटबुक में लिख लीजिए। सेकेंड बिहेवियर जो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, क्या क्या एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है आप लोगों को पता होगा। डायमंड, ग्रेफाइट, ये दो तो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में ही सुने थे, याद होगा आप लोगों को, कार्बन एंड ग्रेफाइट। यहां पर एक और चीज है फ्लोरेंसिस, FULLERENES, राइट। अब यहां पर डायमंड क्या है, ग्रेफाइट क्या है और फ्लोरेंस क्या है, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा तुम लोगों का। तो कार्बन जो है बहुत सारे वैसे तो एलोट्रॉपिक फॉर्म करते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइन में अगर मैं बात करूं और एमोर्फस में बात करूं तो डायमंड और ग्रेफाइट जो है ये दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है कार्बन के, जो 1985 में खोज की गई थी। और इसका जो थर्ड फॉर्म है फ्लोरेंसिस, जिसका डिस्कवर्ड HW क्रोटो साहब, ई स्मॉली और RF कर्ल साहब ने मिलकर किया था 1996 में, जिस कारण से इन लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला था। अब आ जाओ डायमंड के बारे में। डायमंड जो है एक क्रिस्टलाइन लैटिस। व्हाट इज डायमंड? डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन लैटिस। अब अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर ये क्या क्रिस्टलाइन लैटिस, तो जब भी डायमंड का फॉर्मेशन होगा वहां पे कार्बन कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड का मतलब तुम समझ लेना sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन जब भी अल्कीन फॉर्म में होगा तो वहां पर उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और डायमंड में हर कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के रूप में जाता है, क्योंकि हर कार्बन 4 अलग कार्बन से जुड़े होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? इनका स्ट्रक्चर जो है हमेशा याद रखना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और अगर इसके बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो 153 पिकोमीटर इनका बॉन्ड लेंथ हो। कार्बन, हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़े हुए हैं डायमंड में, जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल और बॉन्ड लेंथ जो है 153 पिकोमीटर, जिस कारण से इनके स्ट्रक्चर जो है एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड इन स्पीसीज एंड प्रोड्यूसेस अ रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स। याद रखना बच्चों, अगर इसका स्ट्रक्चर तुम बनाओगे तो तुमको पता चल जाएगा कि हर एक कार्बन 4 अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। हर एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? 4 अलग कार्बन। वैसे अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा होगा तो कार्बन जो है ना इस तरह का एक बॉल होता है, जिसमें यहां पर एक होल होगा, एक इस साइड होल होगा, एक इस साइड होल होगा, और एक मतलब यहां पर से एक स्मॉल स्टिक निकलेगा, एक यहां से स्मॉल स्टिक निकलेगा, एक यहां से स्मॉल स्टिक निकलेगा और एक यहां से निकलेगा। तो यहां पर वापस एक हम बड़ा सा कार्बन ऐड करेंगे, फिर यहां पर एक मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बना रहा हूं यहां पर। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो 153 पिकोमीटर। देखना तुम्हारे एनसीईआरटी में डायमंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा, जिस स्ट्रक्चर में तुम्हें हर एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड
जिसमें लैटिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको तोड़ना, किसी भी डायमंड को तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जैसे मैंने तुमको बताया सिंगल बॉन्ड है, सबसे पहली बात ये आपको समझ लेना है, और सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर डायमंड इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। इट इज यूज्ड फॉर एब्रेसिंग, फॉर शार्पिंग हार्ड टूल्स, इन मेकिंग डाइज एंड इन मैन्युफैक्चरिंग द टंगस्टन फिलामेंट फॉर लाइट बल्ब। तुम लोगों ने देखा होगा कि पहले जमाने में वो 100 वाट का बल्ब आता था, इसमें एक फिलामेंट होता था, याद है, ये पीली कलर की रोशनी देती थी। ये बल्ब जो है इसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बनता है, और टंगस्टन को शार्प करने के लिए ये डायमंड का यूज किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये डायमंड पूरे पृथ्वी पर सबसे अगर कोई हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो ये है हमारा डायमंड, राइट, और जिसके बहुत सारे यूजेस है हमारे डेली लाइफ में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी में, डायमंड इज कोवेलेंट येट इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट हुआ है। अब यहाँ पर सही बात है, कार्बन कार्बन का तो सिंगल बॉन्ड है, तो फिर कोवेलेंट कंपाउंड होते हुए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों जा रहा है? तो डायमंड का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मैंने जो ड्रॉ किया था, कार्बन, हर एक कार्बन 4 सिंगल कार्बन से जुड़े हुए हैं और चारों के चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। सिंगल बॉन्ड मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, और इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्पेशली देखो जनरली अगर मैं बात करूं कार्बन हाइड्रोजन अगर होगा तो उसको ब्रेकअप थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी में कर सकते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और चारों के चारों सिंगल और हर एक कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसीलिए जो है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और ब्रेक करना मतलब समझ रहे हो ना, मेल्टिंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत होगी, क्योंकि चारों के चारों जो है सिंगल बॉन्ड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा सेकेंड ग्रेफाइट, राइट, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन क्या है? ग्रेफाइट। अब तुम्हारे दिमाग में वापस क्वेश्चन आया कि ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्ड आर हेल्ड इन द वैन डर वाल फोर्सेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर इज 340 पिकोमीटर। इनका लेयर होता है, एक जैसे कार्बन का चेन यहाँ पे और एक, ये दोनों का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के लेयर का डिस्टेंस की बात मैं करूं तो 340 पिकोमीटर होगा, 340 पिकोमीटर्स बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ दिस ग्रेफाइट रिंग्स। अब क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कि सर इसमें कौन सा फोर्स काम करेगा? तो इसमें जो है वैन डर वाल फोर्स काम करेंगे, और इनका ईच लेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन, सब बेंजीन की तरह जो है, खाली उसमें डबल बॉन्ड नहीं होंगे, याद रखना। इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा 141.5 पिकोमीटर, लेकिन ये जो बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने कहा है कि बेंजीन होंगे, आप जैसे वैसे हर एक 2 लेयर बेंजीन टाइप के रिंग होंगे, डबल बॉन्ड वाले होंगे, तो डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें 3 सिग्मा होगा और एक जो है पाई बॉन्ड होगा, चौथा कार्बन जो जुड़ा होगा वो डबल बॉन्ड से, जो डीलेबलाइज्ड स्ट्रक्चर होने के कारण इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्री होने का मतलब ये कंडक्टर हो जाते हैं। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी along with the sheet. Graphite cleaves easily between the layers and therefore it is very soft and slippery. Lubricant in machines running at a high temperature where oil cannot be used in the lubricant. मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये जो आप स्ट्रक्चर बता रहे हो, जैसे मैंने तुमको बताया यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों लेयर के बीच का डिस्टेंस जैसे मैंने तुमको बताया था ये ज्यादा है, राइट, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ। तो इस तरह से जो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है, ये ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर्स तुमको दिखाते हैं कि इनका दोनों का जो बॉन्ड लेयर है वो ज्यादा डिस्टेंस पे है, और ज्यादा डिस्टेंस पे होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, जिस कारण से ग्रेफाइट को कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तुम बोलोगे कि सर कार्बन तो नॉन मेटल है, फिर ये ग्रेफाइट कंडक्टर कैसे हो जाता है? दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड। यहाँ पर जो मैंने तुमको बताया था ये क्रिस्टलाइन ये भी होगा, लेकिन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड और चौथा कार्बन जो है डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पर जो तीनों कार्बन का, सब कार्बन का अलग अलग 4 बॉन्ड करना है, तो यहाँ पर एक कार्बन, कितने कार्बन अब तुमको पता है कि जैसे मान लो एक डबल बॉन्ड हो गया, तीसरा चौथा, फिर यहाँ पर ये भी 4 कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये भी 4 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसको भी जो है 1 2 3 4, फिर इस तरह से यहाँ पर ये, तो ये जो स्ट्रक्चर्स जो फॉर्मेशन होंगे, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और यहाँ पर जो 4th कार्बन होगा
मतलब हर एक फोर्थ कार्बन को जो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा, तो ये पाई वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव करेगा, और फ्रीली मूव होने का मतलब हो गया कि ये ग्रेफाइट जो है, फ्री का मतलब होता है मोबाइल, याद रखना मोबाइल का मतलब ही होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं दैट इज अ फ्री वायर, इसीलिए उसको मोबाइल कहते हैं। मोबाइल का जनरल मीनिंग वो फ्री होता है, तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिस कारण से ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गॉट इट। अब यहाँ पर जो मैंने बताया तुमको, ये सॉफ्टी इन टच होता है, स्लिपरी होता है। ड्राई लुब्रिकेटिंग मशीन, इसको जो है हाई टेम्परेचर वाले मशीन में नहीं डाला जाता है, जो लो टेम्परेचर, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल में लुब्रिकेंट के रूप में इसको यूज करते हैं। तीसरा हमारा है फ्लोरेंसेस। ये क्या होता है फ्लोरेंस? तुम बोलोगे कि सर ये क्या है? बक्की बॉल का नाम तुमने सुना होगा। फ्लोरेंसेस आर मेड बाय हीटिंग ग्रेफाइट इन एन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेशर ऑफ इनर्ट गैस सच एज हीलियम और आर्गन। हीलियम और आर्गन में अगर इस ग्रेफाइट को हीट करोगे तो तुम्हें फ्लोरेंसेस मिलेंगे। अब बोलोगे सर ये फ्लोरेंसेस है क्या? इट इज अ सूटी मटेरियल फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वेपराइज्ड कार्बन, जिसमें अनेकों संख्या है कार्बन के Cn मॉलिक्यूल्स, जिसको छोटे छोटे बांट में C60 में बांट दिया, C70 में बांट दिया, C80 में। आप समझ जाओ, मतलब सीधा सीधी क्या है, तो Cn फॉर्म में है, बहुत ज्यादा कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच है, जिसमें ये C60 C70 ये सब एक छोटे फॉर्म है जिसको फ्लोरेंसेस कहा जाता है। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर मैं बात करूं तो जैसे C60 C70 वो 350 तक जाता है। Fluoresces are the only pure form of carbon because they have smooth structure without having dangling bonds. Fluorescents are the cage-like molecules. C60 molecules have a shape like soccer ball and are called Buckminster fluorescences. It contains only 26 members of carbon ring, 12 5-membered rings or 6-membered rings. It fluoresces with the carbon 5-membered rings, but a 5-membered ring can only fuse with the 6-membered ring. All the carbon atoms equal and they undergo sp2 hybridization. Each carbon atom forms 3 sigma bond with other 3 carbon atoms. Remaining electron at each carbon atom is delocalized molecular orbital with a turn give aromatic character in a molecule. This ball-shaped molecule has 60 vertices and each one is occupied by 1 carbon atom. It has a contained bond single and a double bond with a carbon-carbon distance 143.5 picometer and 138.3 picometer respectively. This spherical fluorescence is called buckyball in short. तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, जब ग्रेफाइट को तुम हीट करोगे हाई टेम्परेचर पर तो ये Cn फॉर्म में बनेगा। Cn फॉर्म मतलब C60 भी हो सकता है, C70 C80 होते होते C350 तक जाता है। तो तुमको ये सारे जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसी को फ्लोरेंसेस कहा जाता है। अब यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर इसका यूज क्या होता है? ये कार्बन का प्योर फॉर्म है, याद रखना ये कार्बन का प्योर फॉर्म है, ये डीलोकलाइज्ड नहीं होता है, जिसमें बहुत सारे जो कार्बन के रिंग्स होंगे छोटे छोटे, एक 6 मेंबर वाले होंगे, एक 5 मेंबर वाले होंगे। तो 6 मेंबर वाले जो रिंग होंगे वो 5 मेंबर वाले के साथ फ्यूज होकर के sp2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो 143.5 और 138.3 पिकोमीटर्स के बॉन्ड होंगे। इसका स्ट्रक्चर्स तुम देख सकते हो, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में होगा। It is very important to know that graphite is thermodynamically most stable allotrope of carbon and therefore the enthalpy standard enthalpy formation of graphite is taken as 0. याद रखना प्यारे बच्चों, standard enthalpy of formation of graphite is 0. याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर। तो डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अगर डायमंड और फ्लोरेंसेस की बात करो तो डायमंड का तुमको पता होगा, इन दोनों का एंथैल्पी फॉर्मेशन जो है अलग अलग है रिस्पेक्टिवली। अगर C60 का बात करो तो 1.90 और डायमंड 381 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बन ब्लैक, कोक, चारकोल और impure forms of graphite or fluorescence. Carbon black is obtained by burning hydrocarbon in a limited supply of air. Charcoal and coke are obtained by heating wood or coal respectively at a high temperature in the absence of air. अब ये तुम समझ गए कि ये था हमारा मेन कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो सबसे पहले तुमने दिमाग लगाया होगा कि डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंसेस, इन लोगों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जैसे चारकोल है, जैसे मैंने तुमको बताया, कोक है, जिनका जो काला कलर है वो हाइड्रोकार्बन को जब जलाओगे तो वो ब्लैक कलर में एग्जिस्ट करते हैं। और जैसे ही कम एयर दोगे, लैक ऑफ एयर,
तो बहुत ही ज्यादा लिक्विड मटेरियल्स। अब आ जाओ कार्बन की यूजेस क्या है, राइट। ये था हमारा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। कार्बन के बहुत सारे यूजेस हैं और कुछ कंपाउंड्स भी हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। यूजेस ऑफ कार्बन, क्या बता सकते हो व्हाट आर द यूजेस ऑफ कार्बन? भाई साहब कार्बन के तो अनेकों यूज है, राइट। Graphite limbers embedded in the plastic material form high strength lightweight composites. The composites are formed in the products such as tennis rackets, fishing rods, aircrafts and canoes. Being good conductor, graphite is used as electrodes in the batteries and industries electrolysis. Crucible when the graphite are inert into dilute acids and alkaline. Being highly porous activated charcoal is used in absorbing poisonous gases and also used in water filters to remove organic contaminants and in air conditioning system to control the odor. Carbon black is used as a black pigment in the black ink and filler in the automobile tires. Coke is also used as fuel and large as a reducing agent in the metallurgy. Diamond is a precious stone as used in jewelry. It is measured in carats. अब प्यारे बच्चों देखो कार्बन का बहुत सारा यूज, जितना कहो उतना कम है। प्लास्टिक या फाइबर प्लास्टिक के जितने भी पॉलीमर्स हैं वो सब के सब कार्बन के बने हुए हैं। ग्रेफाइट का यूज स्पेशली इलेक्ट्रोलाइसिस में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें यूज हो, इनके जो तीनों इलेक्ट्रोड्स है उसका जानते हो ज्वेलरीज में यूज होता है। बहुत सारे कार्बन के जो ब्लैक पाउडर, जैसे देखना तुम लोगों का प्रिंटर में हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर जो निकालते हैं तो उसमें भी जो है ब्लैक कलर का चारकोल ही यूज होता है। ऐसे अनेकों यूज है कार्बन का। छोटा मोटा कार्बन ऐसे नहीं कह सकते हो कि छोटा मोटा एलिमेंट है कार्बन और उसके कंपाउंड। अगर उसके कंपाउंड्स में जाओगे तो जनरली दो है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की बात करें, उसके बाद हम लोग सिलिकॉन की तरफ जाएंगे। जैसे मैंने दो बताया तुमको, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब तुम बोलोगे कि सर ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ये दोनों जो है क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करोगे, बस खाली इतना याद रखना है, कार्बन को कम ऑक्सीजन सप्लाई करना है तो ये तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। 2C+O2 gives कार्बन मोनोऑक्साइड। बस यहां पे याद रखना है लिमिटेड ऑक्सीजन का सप्लाई करना है। क्या करना है? लिमिटेड ऑक्सीजन का सप्लाई करना है। तो ये सबसे पहला मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कार्बन मोनोऑक्साइड, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर बहुत ही कम मात्रा में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है तो सीधा सीधा याद रखना, एसिटिक एसिड को क्या करेंगे हम लोग? डिहाइड्रेशन करेंगे। एसिटिक एसिड जानते हो क्या होता है? CH3COOH और दूसरा होता है फॉर्मिक एसिड भी। तो फॉर्मिक एसिड भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है एसिटिक एसिड, कोई भी एसिड तुम ले सकते हो। चलो मान लो फॉर्मिक एसिड ले लिया, HCOOH को डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब कंसंट्रेटेड ऑफ H2SO4 ले लो और हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर पता है तुमको कितना लेना है? अप्रॉक्सीमेटली 100, 273 प्लस 100 मतलब 373 केल्विन पर लोगे तो ये H2O बाहर हो जाएगा प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस करना है, देख लो रिएक्शन बैलेंस है, HCOOH, यस रिएक्शन इज बैलेंस। अगर कमर्शियल स्केल के लिए प्रिपेयर करना है तो इसमें हम लोग हॉट कॉक में स्टीम पास करेंगे, जो हम लोग का वाटर गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 ये हम लोगों को मिलेगा। मतलब C प्लस H2O को अगर हाई टेम्परेचर पर ले जाए, कार्बन सॉलिड फॉर्म वाले को अगर हम हाई टेम्परेचर पर ले जाएं, हाई टेम्परेचर मतलब समझ लेना 1000 के ऊपर तक, 473 से लेके 1273, 473 टू 1273 केल्विन तक अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ये वाटर गैस बनाएगा, CO प्लस H2 बनाएगा। क्या बनाएगा? वाटर गैस। And when this water gas is specially used in the instead of steam, और ये वाटर गैस जो है ना प्रोड्यूसर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे पता है? मतलब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा, CO प्लस N2 का फॉर्मेशन करेगा तो वो प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर गैस। याद रखना बच्चों, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ये जो बनाएगा तुम्हें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन at 1273 Kelvin
ये जो तुमको बताएगा ये क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन CO प्लस N2, इसको कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर गैस। और CO प्लस H2 को क्या कहा जाता है, वाटर गैस। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने का तरीका है। आई होप तुम लोगों को पता होगा। वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड इन वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस कैन अंडरगो फर्दर combustion forming carbon dioxide with the liberation of heat. Carbon monoxide is a colorless, odorless and almost insoluble in water. It is a powerful reducing agent and reduces almost all metallic oxide other than those of the alkali and alkaline earth metals, aluminum and a few transition metals. This property of carbon monoxide is used in the extractions of many metals. बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका एक्सट्रैक्शन करने में यूज होता है। अगर मैं बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो फेरिक एसिड के फॉर्म में आयरन निकलता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसको रिएक्शन करोगे तो ये आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। उसी तरह से जिंक ऑक्साइड के रूप में हमारा जिंक का ओर मिलता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन अनबैलेंस है, उसको आप लोगों को खुद करना है। लेकिन इतना मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस है कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड, अब कोई पूछेगा कि सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें कितने बॉन्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते, डेफिनेटली आई विल शो यू। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जिसमें 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। यस, राइट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर में तुम देख सकते हो, देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स, देयर आर 1 सिग्मा एंड 2 पाई। सॉरी, यहां पे मैंने सिग्मा ही 1 होगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी हियर। देयर इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई, सिग्मा 1, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, याद रख लेना बच्चों। तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई कार्बन बॉन्ड्स होंगे। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, कार्बन के पास भी यहाँ पे लोन पेयर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज अ डोनर एंड रिएक्ट विद अ सर्टेन मेटल व्हाइल हीटिंग टू फॉर्म मेटल कार्बोनेट। बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जब अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो वो कार्बन मेटल कार्बोनिल्स बनाएंगे। और यही एबिलिटी कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कॉम्प्लेक्स हीमोग्लोबिन के साथ भी अगर मिला है। हाँ, ये एक बात बहुत ही बता देता हूँ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही पॉइजनस गैस है। अगर मनुष्य के शरीर में अगर हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाए तो कोई भी जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड 300 टाइम्स, याद रखना, जो अदर ब्लड्स होते हैं जैसे मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कंपेयर में 300 टाइम्स ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जितना भी हीमोग्लोबिन होगा वो स्टेबल होगा। तो ये बहुत ही पॉइजन। अगर किसी भी मनुष्य को, तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर हीमोग्लोबिन रेड ब्लड के साथ मिल गया तो ये स्टेबल हो जाता है और ये अल्टीमेटली रिजल्टिंग टू डेथ ऑल्सो, मनुष्य को मृत्यु तक ये उतार सकता है। तो ये था कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकंड कंपाउंड है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जो तुम लोग इजीली जानते हो, सबसे बड़ा नेचर है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज प्रिपेयर्ड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, मतलब पूरी तरह से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को जलाएंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड सेकंड वाला जो है कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर कार्बन को पूरी तरह से जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, ये तुम लोगों को पता है। मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर हम देंगे तो। और दूसरा एक है मीथेन को अगर हम जलाएंगे तो भी हम लोगों को क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, राइट। तो ये 2 प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के। लेबोरेटरी मेथड से बनाओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्शन करो, किसके साथ, CaCO3 को अगर हम HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा पता है तुम लोगों को, CaCl2 प्लस CO2 प्लस HCl, राइट, नॉट HCl, इट विल बी H2। रिएक्शन को खाली बैलेंस कर लेना तुम्हारा काम है। तो ये 3 मेथड है जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को बना सकते हैं कॉमर्शियल स्केल पर। यही लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन को अगर हम हीट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा, राइट। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्वेश्चन होगा कि सर इसके प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये भी एक कलरलेस गैस है। लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर मेक्स इट immense biochemical and geochemical importance with the water it forms carbonic acid। हाँ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर तुम वाटर के साथ मिला दोगे बच्चों तो ये कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो हम लोगों का फिजी ड्रिंक बनाने में यूज होता है, ये तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, कलरलेस ऑडरलेस गैस है और लो सॉल्युबल है वाटर के अंदर में, राइट। उसके बाद ये
अगर H2CO3 को ब्रेकअप करोगे तो तुमको पता होना चाहिए H2CO3 जब ब्रेक होता है तो H2CO3 दो स्टेप में ब्रेक होगा, ये H प्लस और HCO3 माइनस, जिसमें ये H प्लस जो है वाटर के साथ मिल करके क्या बना लेता है H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। वापस HCO3 माइनस जो है फिर से H3O प्लस और CO3 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये कार्बोनिक एसिड को इस तरह से हम लोग ब्रेकअप कर सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, कार्बन स्पेशली कार्बोनेट आयन HCO3 माइनस की बात करूं तो ये जो है तुमको बफर सॉल्यूशन बनाने में मदद होगा। ब्लड के साथ मिक्स होकर के 7.26 से 7.42 के बीच में ये पीएच जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली जो है 0.03% बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ये, राइट। फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है सबसे ज्यादा याद रखना, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। ये रिएक्शन याद रखिएगा बच्चों, ये जो है हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, जिसमें तुम लोगों को पता है ग्रीन प्लांट्स जो भोजन बनाते हैं तो हाँ तुम्हारा दिमाग होगा कि सर यहाँ पे सर ने नहीं लिखा, तो लिख देता हूँ भाई, यहाँ पे क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में। तो ये तुम्हारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एक हो गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, जिसमें और सबसे बड़ा चीज जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाए तो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है, और इसका मेन बढ़ना होता है कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के रूप में, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां पर, और ग्रीन हाउस इफेक्ट जिससे बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, हमारा क्या होगा याद रखिएगा बच्चों, हमारा जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीशन हो जाएगा। Carbon dioxide can be obtained in the solid form as a dry ice. It allows to liquefied carbon dioxide to expand rapidly. Dry ice is used as a refrigerant for ice cream and frozen food. Gaseous carbon dioxide is extensively used to carbonate soft drinks. Being heavy and non-supporter of combustion, it is used as a fire extinction. A substantial amount of carbon dioxide is used to manufacturing urea also. In carbon dioxide molecule, carbon atoms undergo sp hybridization. हाँ, यहाँ पे तुमको कोई पूछेगा भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, तो डबल बॉन्ड होगा, C डबल बॉन्ड और Z डबल बॉन्ड। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये sp हाइब्रिडाइजेशन में होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होंगे, याद रखना। तो यहाँ पर प्लस, फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, और ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो दो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास तुमको पता है, जिसमें पी बॉन्डिंग होता है, कार्बन से 115 पिकोमीटर इन लोगों का बॉन्ड लेंथ होगा। तो ये पूरा का पूरा हिस्ट्री जो अभी हमने पढ़ा है ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में था। कार्बन जो एनोमलस बिहेवियर शो करता है ग्रुप नंबर 14 में, इसके एलोट्रॉप्स क्या है, डायमंड ग्रेफाइट फ्लोरेंसेस क्या है, इसके यूजेस क्या है कार्बन के, इसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, इसके ऑक्साइड्स मतलब जो भी तीनों फॉर्मेशंस थे उसको देख लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे फॉर्मेशन होता है, इसका केमिकल रिएक्शन क्या क्या है, किस तरह से ये हमारे डेली लाइफ में यूजफुल था। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट लेक्चर वाज ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन कार्बन। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन के भी कुछ कंपाउंड्स हैं 2 या 3, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन्स, उसके बाद जियोलाइट्स और सिलिकेट्स, ये 4 कंपाउंड है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 6 में हमारा ये पूरा का पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और उससे बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं उसके बारे में होगा। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद द फ्रेंड्स so they can be also benefited. Thank you very much.